what it is. We have our quarterfinalists. We have the final 8 teams. It's just down to these four quarterfinals, फिर semis and final. बस आखिरी 7 गेम रह गई हैं. There's एक down वो to these 8, then 4, then finals, of course, yes. Yeah, so आखिरी 7 games रह गए हैं World Cup के. Very exciting World Cup so far, but I think still a lot of excitement left, especially when you look at the quarterfinals. These are actually very juicy quarterfinals. सबसे पहले तो 100%. France Morocco. I Hmm. mean, it is a repeat of the 2022 semi-final. This time it's happening in the quarters. Then you have France, Spain, of course, Belgium. निकाल देगा अभी आते मेरे हैं. हिसाब. अभी next we'll come to Okay, the okay. I thought वो बनना है predictions. बना कह रहे थे. हाँ नहीं नहीं मैं I'm just quickly going through the वो Spain, Belgium है, फिर Norway, England है, and then Argentina, Switzerland. So France, Morocco. I agree with you. France निकाल लेगा, लेकिन Won't be it, an easy game. it won't be easy game. हाँ, it won't be an easy game, but I think it won't be as मतलब non-footballing as it was against Paraguay. तो Yeah. उन्होंने तो कुछ और ही सोच के आए थे वो फ्रांस के खिलाफ. बट मोरक्को विल एक्चुअली प्ले फुटबॉल आई थिंक, बट इट विल बी अ वेरी केजी. मेरे ख्याल में मिडफील्ड में सही गेम. Hakimi is half French, half Moroccan. He plays for the biggest French team in world football right now. He knows France upside down. Uh, Most of the players playing for Morocco are like usually French. Bouhaddi is one of those. Brahim Diaz is one of those. Hakimi is one of those. I think there are a couple of players I'm missing right now are also French nationals. So they know France. They know the culture. They know the kind of football French team plays. They have come from the academy and everything. फ्रांस की बात करें, इवन फ्रांस के अंदर भी बहुत से मोरक्कन प्लेयर्स हैं, बहुत से मुस्लिम मोरक्कन प्लेयर्स हैं. सलीबा इज वन ऑफ दोस, कोनाटे इज वन ऑफ दोस, जो जिनकी थोड़ी डेस्टिनेंट मोरक्को से मिलती है. डेम्बेले की भी कहते हैं सेनेगाल और मोरक्को से थोड़ी बहुत है. बेंजेमा वाज वन ऑफ दोस. ठीक है. तो ऑब्वियसली फ्रांस आल्सो नोज मोरक्कोस इनसाइड आउट, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनीज एक टाइम पे हुई या थी बिफोर द रेवोल्यूशन. या तो दे नो द लैंग्वेजेस, दे नो द कल्चर्स दोनों के. But on paper, right now, obviously, France is a very, very heavyweight right now. They've got या world class players in their teams, UCL winners, league winners, स्टैक्स. Ballon d'Or ये winners, World स्टैक्स Cup यार. winners. It's packed. It's totally packed from the goalkeeper to the strikers. Totally packed. मतलब आप देखो ना यार, उनके पास कोनाटे है, लीग विनर है. सलीबा है, लीग विनर है. राबियो है, वो भी लीग जीत चुका है बायर्न के साथ एंड पीएसजी के साथ. वो वर्ल्ड कप विनर है उनके पास. एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, डुए के बारे में बात भी नहीं मैं करना चाहता कि ये किस या क्वालिटी के प्लेयर हुआ. चर्की इनके पास बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बेंच से आता है. तो फ्रांस की टीम तो पूरी स्टैक्ड है सर. फ्रांस की चुआ में नहीं हो गया. एंड मतलब आप कांटे हो गया, वो भी बेंच पे होता है, फ्रेंड्स पे होता है. तो मतलब France is stacked. It's totally या stacked from the goalkeeper to the striker. And I don't see a comfortable win. I see a very, very इजी good विन. game. Very good game. Very good game. दोनों साइड से मैं गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई नीड टू सी साई बारीक प्ले कर रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन ही वाज प्लेइंग ही हैड हैमस्ट्रिंग इंजरी. दैट वुड बी अ वेरी क्रूशियल जो मिस. है प्लेयर फॉर मोरक्को आफ्टर हकीमी, आई या बिलीव हकीमी एंड बुआटी. तो आई नीड टू या सी द गेम. आज रात को देखते हैं क्या होता है. बट आई थिंक फ्रांस विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस ऑर्डर या और फ्रांस. Yeah, France इतनी strong चल रही है, इतनी strong squad है. I think the only thing that can go against them is they having, the French having a bad day. And वो हो सकता है, वो तो किसी टीम के साथ भी नॉकआउट में हो सकता है. So that's the only thing that I can put against them. But otherwise, I'm also seeing a French win, close win, but a French win for sure. फिर जी स्पेन और बेल्जियम पे आते हैं. मुझे ये लग रहा है बेल्जियम को जो है ना एक एक अदद चाचू जो यूएस में बैठे हैं, उन्होंने ऐसी चाबी दी है कि वो शायद अब जरा अब जाके मोटिवेशन में आ गए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए. सो आई एम एक्चुअली गोना पिक बेल्जियम. आई थिंक बेल्जियम माइट जस्ट बीट स्पेन नाउ. आई थिंक दे हैव द मोटिवेशन नाउ. And 100%. I Spain, mind agree. you, I think Spain haven't played to their full potential throughout the tournament. They haven't 100%. looked. Yeah. 100%. नहीं नहीं, एक दो गेम्स उन्होंने मतलब बिग मार्जिन से दे हैव वॉन द गेम्स. कंफर्टेबल क्रोएशिया जीते के हैं. हाँ, अगेंस्ट कंफर्टेबल जीती हैं. क्रोएशिया के अगेंस्ट नहीं, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट दे वॉन 3-0. एंड आई हाँ, थिंक एक और और वो गेम था उनका, आइदर सऊदी इट वाज जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, आई डोंट सऊदी रिमेंबर एग्जैक्टली. सऊदी सऊदी है सऊदी ना. के हाँ, साथ तो जीता. उसको 5-0 मारा था, आई थिंक 4-0 मारा था. या पोर्चुगल से ऑल द बाय द वे मिकेल मरीनो, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश though. Very beautiful finish, Mikel Merino. या The number 6 had थैंक turned into number आर्टेटा फॉर 9. दैट. थैंक Yeah. आर्टेटा फॉर दैट. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna praise Arteta for this. और मैंने अपनी वीडियो में ही बात कही थी, अपनी आपने देखी थी, या इंस्टाग्राम या में आई सॉ पोस्ट की थी कि आई भाई सॉ. जिसने भी इस बंदे को मिडफील्डर देखा था उसने सब करियर दफा किया है बंदे का. ये स्ट्राइकर था आदमी. हाँ. खैर, he's still not that old to play as a striker, तो I think Gyökeres के बाद हम इसको स्ट्राइकर खिला सकते हैं. Merino is a striker for me, I believe. या He's या a beautiful striker. His finishing is elite. Spanish side versus the Belgian side. Yeah, very tough one to call, Shiraz. I would edge Spain in this game because
because of the experience and because of the quality they have in their team. Yeah. Obviously, Rodri, Merino, Yamal, Ferran Torres, Ferran तो खैर नहीं, Pedri, Gavi, Alex Baena. Their defense is good. I think Spain will go through this. आपकी बात सही है कि बेल्जियम की मोटिवेशन है, उनके बाद भी अच्छी प्लेयर्स है, KDB, Trossard, Tielemans, Lukaku. Yeah. अभी And इससे Lukaku comes off the bench. He has been coming off the 100%, bench, so he's coming off fresh legs towards fresh the legs, end yeah, of the game. yeah. तो पता नहीं, मुझे फीलिंग है कि शायद बेल्जियम ले जाए, बट अगेन नॉकआउट 50-50 कैन गो बेल्जियम एनीवे. जीत नहीं सकता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हाँ, हूँ. I'm not saying कि बेल्जियम बिल्कुल आउट है, बट but इट्स I ओके, will मतलब let वो तो है ना. Spain. Yeah, It's a yeah, knockout. So you're going yeah, Spain, I'm going Belgium. yeah. चलो Spain, जी, Spain. next. My mind England says versus England. Norway. My mind says England, but my heart says, and I want it to be Norway. Even though Same, England has more of our Arsenal boys in, but यार नहीं यार, नॉर्वे क्या same, छोड़ ही same, रही है so far. same. Even I want Norway to go forward, but for me, England is winning the World Cup. ये बहुत बड़ा claim कर रहा हूँ. I might be wrong, but I think it's coming home this time because the quality that England possesses right now, I think Declan Rice is the best midfielder so far in the World Cup right now. I think he has created the most chances. Bukayo Saka is back on form again. He has given 3 assists. Harry Kane is the most hot striker right now alongside Kylian Mbappe and Erling Haaland. Bellingham. And Bellingham, of course, Mark Gahey, निको रायली भी सही चल रहा है अभी भी, मतलब उसके मूवमेंट्स आ रहे हैं. एंथनी गॉर्डन भी लास्ट गेम बहुत अच्छा खेला. वेरी टफ, बट आई थिंक इंग्लैंड विल गो थ्रू. वही ना, ऑडेगार्ड के लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे, बट आई थिंक माइंड इज इंग्लैंड विल गो सेइंग माइंड इज सेइंग इंग्लैंड. मेरा भी यही कह रहा है कि यार जाहिर है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी एंड ऑल, बट आई डोंट नो यार, शायद शायद नॉर्वे कर ले, एंड मुझे तो खुशी होगी. नॉर्वे भी थ्रू. मुझे करेगा भी तो मुझे बहुत तो खुशी बड़ी होगी खुशी होगी. ऑडेगार्ड के सेमीज या में देखने की, शिराज भाई. बट मैं एक या एक यहाँ पे गैम्बल इस बात का ले रहा हूँ कि इंग्लैंड के जो कोच है थॉमस टुकल, ही इज अ टूर्नामेंट मास्टर. या ही इज नोन फॉर विनिंग टूर्नामेंट्स. ठीक है. इंग्लैंड की बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी व्हेन दे डिड नॉट सिलेक्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स. गोल पामर ने नहीं उठाया था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ या था. आई थिंक लुइस हॉल भी नहीं उठाया था उन्होंने, आई बिलीव. ठीक है, या लुइस हॉल नहीं, खेल रहा. बहुत बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं. he did not take Foden, he did not take Palmer, He you did not know, pick big Foden. names, big He did not established pick. names. Yeah, he did not pick Miles Lewis Kelly. He did not pick Ethan Trent Maneri also. Alexander Arnold. ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड भी नहीं उठाया, तो कैम्बल तो लिया है उसने. लेकिन हाँ, सो फार सो गुड. मैगवायर को छोड़ के गया है, who had a good मगवायर season. छुट्टी गया है. लूक शॉ नहीं या उठाया. मगवायर नहीं लुक शॉ नहीं उठाया. उठाया. माइनू को अभी तक बेंच पे रखा हुआ. माइनू, आई डोंट रिमेंबर माइनू प्लेइंग एनी ऑफ I द don't गेम्स think ऑफ he's वर्ल्ड come कप. on as yet. नहीं. नहीं तो यार. तो सो फार द गैम्बल हैज प्लेड रियली वेल फॉर हिम इन हिज फेवर, बट आई थिंक इट्स कमिंग होम दिस टाइम. इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता हुआ देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों. मैं इंग्लैंड को वर्ल्ड कप चलो. जीता, या इंग्लैंड जीत रहा है या स्पेन जीत रहा है. मैं फ्रांस अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीता हुआ नहीं था. अब अर्जेंटीना में आगे बात करते हैं. हाँ, But I think England will go through against England Norway. will go through. चलो, let's see. अच्छा जी, then the last one is Argentina Switzerland. I mean, again, this, unless Argentina make more of it, it should be a straightforward win for them, because it's just a very vast difference in quality for both the sides. But प्रॉब्लम ये है कि अर्जेंटीना खेल नहीं रही ना उस तरह. केप वर्डे के साथ एक्स्ट्रा टाइम में जाके जीत रहे हैं, इजिप्ट के साथ आखिरी 13 मिनट में जाके जीत रहे हैं. तो ग्रुप से तो निकलने के बाद अर्जेंटीना ने तो पता नहीं ठान ली अपने ऊपर कि यार नहीं, हम जरा एक्साइटिंग करेंगे वर्ल्ड कप को आखिरी आखिरी स्टेजेस में. तो वो चीज़ उनके ऊपर ही होना पड़ जाए, बट वरना क्वालिटी में आई डोंट सी स्विट्जरलैंड गोइंग अहेड ऑफ अर्जेंटीना. I think Switzerland is going through You do? 100%. मतलब I'll I'm be not happy giving if मैं that happens. Nothing confidently, against मतलब Messi. 100%. यार 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आई थिंक स्विट्जरलैंड गो थ्रू, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर एक चीज है जो अर्जेंटीना की नहीं चीज. अर्जेंटीना इज टोटली रिलाइंग ऑन अटैक राइट नाउ. Yeah. मेसी एंड जूलियन अल्वारेज एंड Gattuso. मैकेलिस्टर भी आगे जाते हैं, एंजो फर्नांडिस भी मिड से. मिडफील्ड भी सही है उनकी, अटैक बहुत अच्छा है उनका. डिफेंस आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल. You do Yeah. not concede 2 goals against a team that is debuting in their World Cup as a Yeah. defending champion. You do not do Yeah. that. आप वो गेम भी आखिरी मिनट तक लेकर के, जब आपको ओन गोल मिला, इजिप्ट वाला मैच आप हारते हारते बचे हो, ये चीज मरवाएगी Yeah. उनको. मैंने स्विट्जरलैंड की एक चीज नोट की शिराज भाई, आई एम नॉट श्योर अगर आप उससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे. The last game that they played against Colombia, although it was a 0-0 120 minutes वाला game, but Yeah. Colombia has a very good attack. Luis Diaz, James Rodriguez, बहुत पाई के प्लेयर्स हैं उनके पास. उनको उन्होंने 2 घंटे चुप करा के बैठे हुए थे, and they won on Yeah. penalties. They've got quality defenders. Manuel Akanji है उनके पास Granit Xhaka है, although he might not play in the next game because of the injury. उनके पास Endoy है up front. उनके पास बहुत quality players हैं. मेरा एक नोशन है इस चीज पे. Yeah. आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो.
लेकिन 2018 में आपकी डार्क हॉर्सेस क्रोएशिया सेमीज तक आ गए थे, दे एंडेड अप इन फाइनल्स। उसके बाद मोरक्को सेमीज तक आया था, मैं एलिजाबेथ स्विट्जरलैंड के सेमीज में देख रहा हूँ। Okay. I think Argentina is going out. I don't see Argentina or France either of them winning the World Cup. I don't see either of the team winning the World Cup. मैं स्पेन या इंग्लैंड पे ही अभी तक रूट करूंगा। Okay. Let's see. I think Argentina. So यार मेरा वो ये है कि you're right and I think मैं भी यही कह रहा हूँ, केप वर्डे के खिलाफ जिस तरह जीते हैं एंड इजिप्ट के खिलाफ जिस तरह जीते हैं, तो अर्जेंटीना अगेन वेरी सिमिलर इन माय ओपिनियन अबाउट स्पेन, बट मच मोर सो इन फैक्ट फॉर अर्जेंटीना, कि वो ग्रुप जैसे ही खत्म हुआ है अर्जेंटीना तो बिल्कुल लिविंग ऑन द एज टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है। वो लिटिल मैन अगर थोड़ा पागल हो गया तो शायद जीत जाए। क्या हुआ? वो लिटिल मैन अगर थोड़ा पागल हो गया तो शायद जीत जाए, बाकी नहीं दिख रहा है अर्जेंटीना को जीता हुआ। यार यही है ना, so that's the thing. Even if the Swiss defend really well, even if Argentina's own defense is pathetic, Argentina has that ability to suddenly switch it on, create a moment of magic and just take it away. That is one man in that team. लेकिन वो वन मैन करता रहना यार, बारसा के लिए करता रहा है साला, इंटर में वो मियामी के लिए 39 years करता है, थक नहीं रहा है। थक नहीं है। So I mean, you have to give it to him, and he is a very huge X factor because of which you can't rule it out, and that is the reason that I'm going to say that Argentina is probably going to go into the semis. Um, उसके आगे कहानी क्या होती है वो तो देखते हैं। I think their story probably finishes on the semis for me, Argentina. But वो तो जब चलो quarters हो जाएंगे तो बात करेंगे। I don't have a concrete winner anymore. By the way, जिस तरह World Cup गया, apart from France. So for me, France still has. Personally, I think France still has the best chance of winning the World Cup, followed probably by Spain and England on equal footing. Not Spain or England, Belgium and in England on equal footing, because I'm seeing Belgium going through. Argentina मेरे ख्याल से semis में आके हार जाएगी, because semis में then they'll really face a very very tough opposition, much tougher than what they've been playing. So I think that will be the end of the road. Let's see. मुझे लग रहा है तुम तो इंग्लैंड को जिता रहे हो ना, तुम्हें तो लग रहा है तो तुम्हारे भी ख्याल से भी। So you're also saying semis में अर्जेंटीना is finished, because सेमी में अर्जेंटीना ने या तो इंग्लैंड को और केन को फेस करना है या हालैंड को और नॉर्वे को फेस करना है। So in either case you are also saying semis में कहानी उनकी मुक रही है। मैं सेमीज में अर्जेंटीना को नहीं देख रहा। मैं इंग्लैंड को जिता रहा हूं। तुम तो चलो देख ही नहीं रहे ना, तुम तो देख ही नहीं, तुम तो पहले ही मुका रहे हो उनकी कहानी। मैं उनको स्विच के अगेंस्ट आउट देख रहा हूँ, और इंग्लैंड के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ शराज भाई, I want see the quality England has, the Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, and John Second Stones. golden generation if you win. They have a loaded generational team with them and they deserve a World Cup. Harry Kane, Declan Rice, these players deserve a World Cup. Reece James भी win मैं कहूँगा। Reece James, although he is a Chelsea leader, he's a Chelsea captain, but मेरे लिए he's a world class right back. Julian Timber से मैं उसको ऊपर देखता हूँ in terms of quality, in terms of leadership. Julian Timber की defensive contributions बहुत excellent है, Reece James की वो नहीं है, लेकिन overall as a right back I think Reece James will top Julian Timber any day. In my team, Reece James is my right back, not Julian Timber. Second, as a substitution, Julian Timber आएगा जरूर मेरे पास, लेकिन मैं Reece James को हमेशा दूंगा क्योंकि the kind of quality he possesses is top class player Reece James. वो भी deserve करता है World Cup यार। बुकायो साका deserve करता है World Cup. आपका जो है जूड बेलिंगहम डिजर्व करता है वर्ल्ड कप। ये बड़े प्लेयर्स हैं, वो जनरेशन प्लेयर्स हैं। एब्सोल्युटली। देखो मैं अभी तो कह रहा हूँ ना कि फ्रांस, आई थिंक प्रोबेबिलिटी वाइज, who do I want to win the World Cup? Honestly speaking, gun to my head right now, from these 8 teams, मैं कहूँगा मोरक्को जीत जाए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये होगी कि मोरक्को जीत जाए, मोरक्को नंबर 1 तो वो जीते। उसके बाद जो है नॉर्वे जीत जाए सेकंड पे, because I would root for someone who has never won the World Cup and would be a fantastic underdog story. Morocco is not an underdog story as much because they're a strong team for the last 4 years, but Norway certainly is that underdog story. और तीसरे पे जो है बेल्जियम जीत। So because neither of them have won the World Cup, so I would be rooting for any 3 of them. इनके बाद इनमें से कोई अगर आगे नहीं जाता तो instead of France, I would rather England win for sure. अगर नॉर्वे ने नहीं आगे जाना है, इंग्लैंड ने आगे जाना है, तो my personal वो would be कि यार नहीं, फ्रांस अब नहीं, बस बहुत हो गया, इंग्लैंड को ही जिता दो एक और। So I actually don't want the French or the Argentinians to win another World Cup or reach have a repeat of the 22 final. Yeah, 22 final. Yeah. So I would rather see any of the other teams. And also शिराज भी आखिरी बात कहूंगा कि इंग्लैंड और स्पेन का मैं इसलिए फाइनल देखें क्योंकि दोनों टीम्स के पास एक वर्ल्ड कप है। Yeah. It will be a chance for either of these teams to win either one.
तो Yeah, इंग्लैंड और absolutely. स्पेन, मैं अभी भी कहूंगा इंग्लैंड और स्पेन, लेकिन आई विल गिव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लैंड विनिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑन पेपर आई थिंक इंग्लैंड हैज अ बेटर टीम देन स्पेन, एंड यूरो 2022 का 24 का सॉरी यूरो का फाइनल भी रिपीट होगा यहाँ पे। तो Absolutely. लास्ट टाइम स्पेन जीता, इस दफा मैं इंग्लैंड देख रहा हूँ जीता हुआ। चलो लेट्स सी, बट एक्साइटिंग ड्रॉज, एक्साइटिंग क्वार्टर फाइनल्स, अब देखते हैं आगे क्या होता है। That was thank you so much for the time today. Thank you थैंक यू for your मनोज, थैंक predictions. यू। Let's थैंक see यू। which ones come true. जो देख रहे हैं आप लोग भी अपनी predictions प्लीज दें कमेंट्स में, छोड़ें हमारे लिए predictions. Please like our channels, follow us on Instagram as well, and let's see how the quarterfinals go, and then we'll meet for the semis again. इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, thank you so much, signing off. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.